Okay, so while technology can translate, because technology can translate languages, there is no need to learn a foreign language. Do you agree or disagree? So you can agree, but with a concession that while technology is helping in translation and has made communication much easier, I I disagree. Okay, I disagree that there's no need to learn a foreign language. तो इसके साथ आपका ऐसे ज्यादा इजी हो जाएगा लिखना आपके लिए. Yes. ठीक है. So you will Yes. have more content to write. But if you do not make this sentence and you straight away only agree, then you cannot add the advantages of learning a foreign language in your essay. Yes. In your whole essay, you'll have to write that there is no need to learn a foreign language. And technology, then you will not have enough points. Oh, yes, ma'am. Yes. So for that reason, this method is very good, and it will be your view. Whatever you write in the essay will be in your view. Okay. So we'll Yes. discuss the language essays next time, because language essays are also very important. Okay. So today we'll start with the food essays. We've completed the health and the sports essays this week. Today we'll be completing this third topic in that food, health, and sports essays, and we'll be doing these food essays. And these food essays are also related to globalization. And what do you understand by the term globalization? Nisha will tell me. मैम आपने डेफिनेशन भी बताई थी लेकिन मुझे याद नहीं है. हाँ, ये बात है. मैं ये सुनना चाहती थी निशा. That I don't remember, ma'am. Okay. सॉरी मैम. Amandeep. Okay. Nirali. So it is like a process, like मुझे आती है लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ. See, globalization is such a term. इसकी definition बनाना, सब बोलोगे, सब कुछ ना कुछ correct बोलोगे. पर proper Ma'am, definition. What is मैं it? बोलूँ? import and export करना मैम. हाँ, that is One country globalization. to. Correct. हाँ, yes. मैम डिफरेंट कल्चर और एक डिफरेंट कल्चर कंट्रीज के विद द हेल्प ऑफ आईटी रेवोल्यूशन एंड faster means of travel. Yes. Hardik, मैम these girls have spoken. नेशनल बाउंड्रीज खत्म हो जाना मैम. See, different cultures and different economies of the world are coming closer. And this is because of IT revolution and faster means of travel. This says it all. Okay, about globalization. जो import export हो रहा है, सब कुछ ये सब इसके अंडर आता है. Everyone is correct. But इसकी proper definition और सबसे easy definition, और देखो आप में से students ने reproduce करी है. ठीक है, that different cultures and different economies of the world are coming closer. This is because of IT revolution and faster means of travel. Because these food essays touch globalization, so today I will be touching a little bit of globalization in brief. Now, can you tell me what are the advantages of globalization, and what are, like, people who are for globalization, what do they say that globalization, why it is good, why globalization is good, and then one set of people will say why it is not good. Okay, so I'll make a debate group among you. Nirali, Nisha, Amandeep, and Gurpreet Rathore. You are for globalization. Chayank, Anmol, विशाल है. अच्छा बताओ, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन और किसने आना है? Divya S, you will be against globalization, and हाँ, मैं चलो ठीक है, रीना अगेंस्ट ग्लोबल. अब फॉर ग्लोबलाइजेशन वाला अपना पॉइंट रखो. चलो. मैम ग्लोबलाइजेशन से हमें लॉट ऑफ चॉइसेस मिलती है, लाइक एवरी वेस्टर्न कंट्रीज और इन इंडिया एज वेल हम डिफरेंट चीजें वेयर कर सकते हैं. मतलब जो वेस्टर्न लोग वेयर करते हैं वो इंडिया में भी वेयर कर सकते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है. अच्छा गुरप्रीत, कैन यू से दैट इन इंग्लिश? गुरप्रीत, कैन यू से दैट इन इंग्लिश? Yes, ma'am. Yes. Globalization gives us a lot of choices, as well as we can wear different type of clothes with foreign countries people, as well as it's a help to knowing the culture of other country. Okay. You said it's help to. इसको correct कर दो बस.
It helps. Helps. It helps too. Okay, correct. Gurpreet's point is very correct. Now, those who are against globalization, that group will Okay. speak their point. Okay, ma'am. हाँ. Negative effect on local culture. नहीं, जो point उन्होंने पॉजिटिव का दिया ना, उसी का नेगेटिव बना के बोलो. Okay, ma'am. Choices. उन्होंने choices बताया है. Now you will tell me, you will convert that point to a negative point and say, this will be the easiest way to remember the points on globalization. Okay? More use of a foreign product, the local product have decreased and they have extinct. Very good, Hardik. That's very nice. आपने बोला कि foreign products के आने से local products जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. Local businessman will die. Very good. See, then you can give examples, Hardik. Can you give some examples? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ. This The is kiwi Jaspreet. food, Can we use from New this Zealand. point as Yes. decline of local culture? No, we are not talking about culture yet. Okay, Because she was we are talking about the choices. We are talking about choices. We'll come to that Products. point also. Yeah. Okay, but this is the Okay, best way okay. to remember the points on globalization. Supposing you have to say against globalization, so the same point, positive point is choices. Negative point on the basis of that point is that the local businessman will die. Local products cannot stand up against the competition given by the foreign brands and foreign products. Okay, then you will give your examples. Okay, and then you will make a paragraph when you have to speak. And what example can you add for the negative? Or those who are against, मैंने group बनाया ना अभी, those who are anti globalization, वो बताओ कौन सी example डलेगी इसमें? Ma'am, we can add examples about Chinese products, wherein due to globalization and trade treaties, China is dumping a lot of products in India. नहीं, वो नहीं है इसका example. Example है local businessman will die. उसकी example दो. Beauty products. Or Western products are imported in India. आप कितनी सिंपल सोचो. आप सिंपल सोचो. टीवी के कोई ब्रांड थे पहले जो इंडियन ब्रांड थे, वो आजकल नहीं दिख रहे. आपने देखे थे? अब सोनी आ गया. पहले थॉमसन थे. पहले थॉमसन भी बाहर का ही होगा. कोई इंडिया के नाम लो. BPL was Indian. बेलटेक, BPL, ये टेक्सला टीवी, ये ऐसे जो टीवीज थे, ये सारे आजकल दिख रहे हैं. अकाई भी बाहर का था. ओके. हाँ, तो ये टीवीज आजकल दिख ही नहीं रहे, है ना? So we had these TV brands. अच्छा, शूज के कोई ब्रांड्स की बात कर लो. बाटा के रोना. बाटा तो चलो फिर खड़ा हो गया बिकॉज इसने शेक हैंड करा है विद फॉरेन ब्रांड्स, नेचुरलाइजर एंड हश पपीज. That is why Bata is standing. On its own, it would have also gone. मैम लखानी. हाँ, कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स की बात करके. खादी प्रोडक्ट्स की पीछे है. कौन से? वीडियोकॉन. हाँ, वीडियोकॉन ने ना वो इंडियन इंटरनेशनल बन गया है. उसने अपने आप को स्टैंड कर लिया. वो उसमें एग्जांपल दे सकते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड है, वो इसको भी टक्कर दे सकता है. ओके, तो उसमें उसका एग्जांपल आ जाएगा. पर ओनिडा वगैरह काफी कम हो गए ना सेल. ओनिडा की कितनी ऐड थी आज से 20-30 साल पहले. ठीक है. यस मैम. हाँ, तो चलो एनीवेज, सो ये पॉइंट हो गया. अब सेकंड पॉइंट जो एंटी ग्लोबलाइजेशन है ना, पहले वो अपना पॉइंट रखेंगे. चलो. जो वेस्टर्न हाँ, Ma'am, there was one shop which is like totally. आवाज मैम वॉइस क्रैक हो गया. हाँ, वॉइस सुन नहीं रहा. आप दोबारा बोलेंगे. जिनकी वॉइस ठीक है, वो नेगेटिव पॉइंट आपका ग्रुप बना है. कोई भी चलो जिनको किसी ग्रुप में नहीं डाला वो भी. मैम पोल्यूशन इंक्रीज होगा. Ma'am, if the disadvantages is this, that we have to pay huge taxes. If we have to pay huge taxes, then our economy will also fall down. So in order to stand our economy, we need to support. Huge taxes आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो? आप जो मेन पॉइंट्स हैं बड़े पहले प्रायोरिटाइज करो ना अपने पॉइंट्स को. ग्लोबलाइजेशन का अगर आपको ऐसे लिखना है, मैम पोल्यूशन किस वे में लिख रहे हो?
ट्रांसपोर्टेशन और वो सब की वजह से local artisans and they suffer. The industry of local artisans like ये पहले वाले पॉइंट में डाल सकते हो जो पहला हमने किया है, लोकल प्रोडक्ट सफर करेंगे. हाँ, globalization, local languages are disappearing. लोकल लैंग्वेजेस आर डिसअपीयरिंग, तो इसको ब्रॉड टॉपिक कर दो, कल्चर एंड लैंग्वेजेस पे इफेक्ट जा रहा है. ओके, देयर इज एन इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लोकल कल्चर, लोकल कल्चर्स. Ma'am, I was saying in negative impact that we have to purchase the things in huge amount and because we have to pay huge taxes on that. Yes, वो है, Ma'am, but so वो उस also I think also that multiple can be linked choices, to so the it is import-export difficult to deficit because buy we best import a product. lot and we export less. So it yes, creates a burden on the economy. yes, but then there are countries which will say that we import a lot and Yeah, we export a exactly. lot and import less. Import less, yeah. Ma'am, This is the whole essay for the whole, world. The same essay will come all over. Yeah. So you have to, okay, that is fine. You can support the points. हाँ, अच्छा support करा है. अब वो डाल सकते हो economy और choices वाले पैरे में. ma'am, we Without can negative लिखो. write. There's We can nothing also wrong in write. putting. Yes. Ma'am, can we also write in India for instance in India? Yes, you can put example like that. For instance, in India, we import more and export less, and that is why economy is going down. Okay. Yes, हाँ, is falling down day by day. yes, yes. For instance, nowadays more हाँ, people more prefer the Western fashionable clothes. So yes. then after the handicraft clothes will die out. यस यस यस, वो हो गया ना, कल्चर पे इफेक्ट हो गया हर तरह से. यू कैन गिव एग्जांपल्स. लोकल कल्चर्स, पीपल आर वेयरिंग सिमिलर क्लोथ्स, ईटिंग सिमिलर फूड, एंड द लोकल ट्रेडिशंस आर गोइंग डाउन, दे आर बीइंग डाइल्यूटेड. ओके, Yeah. एंड इफेक्ट ऑफ फॉरेन कल्चर्स इज देयर. एंड इसमें जो पॉजिटिव बोलेंगे वो अब बोलो अपना, इसी पॉइंट को पॉजिटिव बना के बोलो. If you say globalization is all good, then you will put this point in a very beautiful way and say, oh yes, ये High है. standards of living across the globe, like अच्छा, आप ये नहीं कर सकते कल्चर वाले पॉइंट Many को. people get employment in this field. Culture, ma'am, developing a good relation between countries. Ma'am, we get to know if we know about the culture of another country, then we can easily communicate with other people and understand their things, हाँ, thoughts. so that you can say, and then you can also say that because people are getting aware of other cultures, a new global culture is emerging which has the good points of all cultures. yeah. That is, see कितना पॉजिटिव लग रहा है ये पॉइंट, कितना पॉजिटिव लग रहा है. सारे यंग पीपल जो हैं वो यही कर रहे हैं ना, ग्लोबल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. दिस हैज द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल कल्चर्स. अब हमारी कंट्री में कहाँ मदर्स डे, फादर्स डे, ग्रैंड मदर्स डे, ग्रैंड फादर्स डे सेलिब्रेट होता था. तो गुड पॉइंट है ना कि बाकी कल्चर, अमेरिकन कल्चर में ये है तो हमारी कल्चर में भी आ रहा है. एंड देन पीपल आर सेलिब्रेटिंग Halloween and Christmas. yes, Christmas and Halloween and all such events very nicely all over the world, and people all over the world are celebrating Deepavali also. Yes. Okay, so you can say that it is and then you can say they are shedding away the negative points of their own culture. For example, in India, young people today are not for dowry. They are anti-dowry. They don't even want to have that antenatal sex determination done because they know there's no difference in girls and boys. ओके, बट पहले ये नेगेटिव पॉइंट था हमारे कल्चर में, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है. द फॉल्स प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज एंड ऑल आर गोइंग डाउन. ओके, बिकॉज द न्यू ग्लोबल कल्चर, ब्यूटीफुल कल्चर विच हैज द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल कल्चर्स, इट इज इमर्जिंग. तो अगर आपने पॉजिटिव बना के लिखना है ऐसे लिखना, and then international relationship of the country will increase. They are also better. Yes. Now we come to some other jobs की बात कर लो. ओके, जॉब्स की बात करते हैं. जो ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड, हाँ, फॉरेन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड करते हैं उसकी इंडस्ट्री को, और वो इट क्रिएट्स मोर जॉब. अच्छा हार्दिक, अभी आप पॉजिटिव साइड पे हो के फॉर हो के अगेंस्ट हो? हार्दिक, अब फॉर हो के अगेंस्ट हो ग्लोबलाइजेशन? हाँ, अभी पहले तो आप अगेंस्ट थे. अच्छा, फॉर थे, ठीक है. तो मुझे लगा आपने दल बदल लिया. ओके, फॉर जॉब्स आर क्रिएटेड. अच्छा, जो एंटी है ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने जॉब्स के पॉइंट को नेगेटिव कैसे लिखना है? एंटी वाले बच्चे बोलो.
जो हमारी लोकल जॉब्स हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बड़ा कंपटीशन है. दे कांट सर्वाइव इन द कंपटीशन. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, हाँ दे कांट compete them. एंड जो वो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उनकी जो requirements होती हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होती है. तो okay Reena, can you say that in English? Your voice is breaking. Your voice is breaking. Let somebody else speak. Can you speak against the jobs point? Anybody? Maqsood, will Ma'am, you can I try? say? Yes. No, developing countries are exploiting poor countries. They are paying much less to workers than they have to pay in their own country. Very good. Yes, that is a point. Okay. And then Yeah. you can give put any example that in their own country, supposing they pay $50 an hour for an IT Yeah. job. In India, they don't pay 1/10 of that. Okay. Okay. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So this is a very good point. We can give The- example of call centers also. yes, you can give example. Very good. You must put Okay. examples. And Yeah, ma'am. so so ultimately they are benefiting themselves. Okay. Yeah. Now these are the points of globalization, and against globalization, people can also say, because there is a lot of travel between countries. So there's pollution, and there is also spread of diseases because of globalization. Okay. अब diseases का सबसे बड़ा example तो आजकल कोरोना. we are all facing. Okay, Yeah. this is it. Swine flu, bird flu भी इसी का है नतीजा कि Yes. बहुत travel था and the diseases were spreading. So anti-globalization you have enough points. Pro-globalization you have enough points. If you get a discuss essay, discuss both sides, you have points. If you get a one-sided essay, you may agree or disagree, and you may make your essay either way. Totally agree, totally disagree will be a very good essay. You do not need to make a wild sentence because you have too many points for one side. Don't get confused. Don't let the examiner get confused. Come out with very good band score. Wild sentence सिर्फ वहां बनाना है जहां points lacking है, और आपको दोनों साइड डाल के ही आपका ऐसे बनेगा. ठीक है? Otherwise, one-sided essay is better scoring if you have enough points for that. ठीक है? अगर points enough नहीं है, then you have to learn other methods. Okay? You may get an essay, discuss both sides, you will need ideas. Now we come to the first essay. This is a food essay, and this is also related to globalization only. Food travels thousands of miles from farm to consumer. Some people think it would be better to our environment and economy if people ate only locally produced food. What extent do the advantages outweigh the disadvantages? Okay, अब मेरे को ये बताओ, ये what extent do the advantages outweigh the disadvantages? Is this a discuss essay or opinion essay? Opinion. Opinion essay. Opinion Okay. essay. And in what is the difference between this essay and is this a positive or a negative development essay? मैम इसमें हमको दोनों लिखने पड़ेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, और बताना पड़ेगा कि कैसे ज्यादा है. हाँ, इसमें आप वन साइडेड नहीं जा सकते हो. ठीक है? इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? उस ऐसे में आप वन साइडेड भी जा सकते हो. ओके, और वो टू साइडेड लिख के भी आप लिख सकते हो, पर इसमें आप टू साइडेड ही जा सकते हो. यू कैन नॉट राइट वन साइडेड ऐसे. आपको दोनों लिखने हैं, बिकॉज द टॉपिक सेज एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. सिर्फ टॉपिक आपसे ये पूछ रहा है कि आपके हिसाब से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं कि कम है. ठीक है? समझ आ गया सबको ये पॉइंट? It's very easy. You just have to, you have to go two-sided. You have to write both advantages and disadvantages. But if you say in your intro that the advantages are more, you will make 2 paragraphs of advantages and 1 of disadvantages. If you say in the introduction disadvantages are more, then you will put 2 paragraphs of disadvantages and 1 of advantages. Right? Everyone got it? मैम ये ऐसे आया था एग्जाम. हाँ जी, आया था. मैम 14 फरवरी 2019 ਨੂੰ. अच्छा, और बेटे सारे पास्ट एसेस बुक की चाहिए ने. Okay, so you will most probably get one of these essays. You are talking about almost 1.5 years, more than that ago, है ना? Yes, ma'am. These essays are repeated. Yes. Okay.
So what is the introduction you will make? You can say okay, चलो आपको points ही कर लो, बाकी तो अब आप बना लोगे ना intro conclusion अगर ये ऐसे आया with the new method. Advantages are more or disadvantages are more लिख के. Advantages मैंने एक पैरे में डाली हैं और 2 पैरास में मैंने disadvantages डाली हैं. Advantages में first point is choices. अब choices को अपने food से related बता देना है, ठीक है? और good relations between countries and yes, 2 points मैंने डाले. Employment, okay, choices, employment and good relations among countries. ये 3 points है. ये 3 points से advantages का पैरा बन जाएगा आपका. Can you make an advantages paragraph with these 3 points? Choices, employment, Yes. and good relations among countries. Okay. Then negative effects. सबसे पहला क्या है foreign food का? Negative effect on local cultures. Local cultures का यहाँ पे हमने जापान का डाला है. आप जापान की जगह इंडिया का एग्जाम्पल डाल सकते हो. नेगेटिव इफेक्ट क्या है? फूड इम्पोर्ट जो बाहर से आता है, या ये जो फास्ट फूड है इसका भी और चीजों का भी फ्रेश नहीं होता. हाँ. फ्रेश नहीं होता वो, पर कल्चर्स पे भी इफेक्ट है ना. कल्चर पे है कि लोगों को Local. अपने देखो इंडिया में ट्रेडिशनली सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं. Yes, ma'am. दाल सब्जी टेबल पे सर्व होती है, एक एक करके चपाती, यू नो, इट कम्स एंड यू हैव इट एंड एंजॉय इट विद द फैमिली. और जो इम्पोर्टेड फूड है, जो कोई भी ऐसे एग्जांपल ले लो, मोस्टली ईटन अलोन. Yes, in front of टीवी, ठीक है. और फिर लोकल कल्चर थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है ना, इससे कम हो रहा है, ठीक है. ओके. देन एनवायरनमेंट पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट है. पोल्यूशन बढ़ती है. yes, it is not that fresh also. Preservatives add होते, you can put this point. वैक्स कोटेड होता है. हाँ. और देखो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स तो डलेंगे ना फूड में. Yeah. और फिर it will be more expensive also, right? Imported food will be more expensive also. ठीक है. So ये है कि इन्होंने एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के पूछे हैं. मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज्यादा है. मैंने लिखा है डिसएडवांटेज ज्यादा है और मैंने ये पॉइंट्स डाल दिए हैं. एडवांटेजेस का एक पैरा बना दिया है. यू कैन इवन से एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है. फिर आप डिसएडवांटेजेस को श्रिंक करके एक पैरा में डाल दो. एडवांटेजेस के 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट एक पैरे में और 1 पॉइंट एक पैरे में विद एग्जाम्पल डाल के यू कैन मेक द एसे डिफरेंटली ऑल्सो. ठीक है. पर आपको दोनों लिखने ही लिखने हैं. पार्डन हार्दिक, I advantage outweighs the disadvantage and disadvantage outweighs the advantage. Can I repeat? हाँ, आप एडवांटेज डिसएडवांटेज के सिनोनिम कर लो ना. मेरिट्स, डीमेरिट्स, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, प्रोज, कॉन्स. ओके. हार्दिक, वॉइस इज ब्रेकिंग. वो एडवांटेज outweighs the disadvantage. हाँ. और disadvantage outweighs the advantage. Can I explain? I'm not understanding this. आपको अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो ना, टू व्हाट एक्सटेंट उसको भूल जाओ. सिर्फ सिंपल देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज को ज्यादा. वो तो जस्ट ए वे ऑफ आस्किंग है. ओके. डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. टू व्हाट एक्सटेंट तो ऐसे ही लिख देते हैं ये. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, उसमें भी कोई फर्क नहीं है. Okay, this is the same as do the advantages outweigh the disadvantages. Was this your question? Yes, ma'am. Okay, उसमें कोई फर्क नहीं है. एडवांटेज डिसएडवांटेज से ज्यादा है. हाँ, तो ऐसे लिख दो. एडवांटेज ज्यादा है तो 2 पैरा एडवांटेजेस के डाल दो और 1 पैरा डिसएडवांटेज का डाल दो. ठीक है. अगर आप लिखते हो डिसएडवांटेज ज्यादा है तो 2 पैरा डिसएडवांटेज के बना दो, 1 एडवांटेज का बना दो. ठीक है. Ma'am, can we also write one point like if a certain country is importing more goods rather than exporting, so it has detrimental impact on the effect on the country itself, on the economy of the country. हाँ, बिल्कुल. आप नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा डाल के ये डाल दो कि ज्यादा इंपोर्ट हो रही है तो फिर इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट है.
Fine, ma'am. Fine. हाँ, आप डाल सकते हो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे है in many countries traditional foods are being replaced by international fast foods. ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो इंटरनेशनल फास्ट फूड से रिप्लेस हो रहे हैं. दिस इज हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन बोथ फैमिलीज एंड सोसाइटीज. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? तो जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो इंटरनेशनल फास्ट फूड से रिप्लेस हो रहे हैं, तो इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है ऑन फैमिलीज एंड सोसाइटीज. आप एग्री करोगे तो आप बोलोगे हाँ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, अपना ऐसे नेगेटिव बना लोगे. और अगर आप डिसएग्री करोगे तो आप बोलोगे नहीं पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, और फिर पॉजिटिव लिख के अपना ऐसे बना लोगे, ठीक है. एंड दिस इज नेगेटिव इफेक्ट्स है जो मैंने इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज ऑन बोथ फैमिलीज एंड सोसाइटीज है. इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज एंड सोसाइटीज के नेगेटिव इफेक्ट्स डाल के वन साइडेड ऐसे बनाया हुआ है. Actually, this essay one of my students got many years back, 2009 or 10. उसके बाद तो बहुत बार आया है. This is actually what she wrote in the exam. मैंने उसी को एक थोड़ा सा modify करके इसमें डाल दिया था. And she got 7.5 something in the exam in her writing. ठीक है. तो ये ऐसे है कि ट्रेडिशनल फूड्स रिप्लेस हो रहे हैं. दिस इज क्वाइट सिमिलर टू अभी हमने जो पॉइंट्स करे हैं, ठीक है. एंड फास्ट फूड से रिप्लेस हो रहे हैं, तो उसका फैमिली से क्या इफेक्ट है? लोग इकट्ठे बैठ के नहीं खाते. अभी हमने पॉइंट करा ना, होम कुकिंग स्किल्स कम हो रही हैं, वो बता सकते हो. बस ये है, फैमिली बॉन्ड्स आर गेटिंग वीक. देन हार्मफुल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स है, उसमें ओबेसिटी एंड डिजीजेस डाल सकते हो, बिकॉज पीपल आर ईटिंग टू मच फास्ट फूड विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. फास्ट फूड्स आर ओवरलोडेड with fats and salts which are not good for health, ठीक है. एंड ओबेसिटी से और प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. देन सोसाइटी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है? लोकल कल्चर डाई आउट हो जाता है. ट्रेडिशनल फूड जो है वो इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कल्चर है, तो आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी एंड नेशन विल डिसअपियर. इट विल बी मोनोपोलाइज्ड बाय वेस्टर्न सोसाइटीज, ठीक है. फिर अगर पीपल हेल्दी नहीं होंगे, ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे, दे विल नॉट बी हेल्दी, तो पूरा प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन विल कम डाउन, ठीक है. और फिर ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, फास्ट फूड प्रमोट्स यूज एंड थ्रो कल्चर, और फिर उससे गार्बेज डम्प्स, कंटामिनेशन, पोल्यूशन, मेनी डिजीजेस दैट कैन आल्सो कम, ठीक है. एडवर्स इफेक्ट्स लिख के वन साइडेड ऐसे है. अब अगर आपने कुछ पॉजिटिव लिखना है तो आप एक पैरा पॉजिटिव का बनाना है तो वाइल कर सकते हो, पर वन साइडेड ऐसे के इनफ पॉइंट्स हैं बिकॉज फैमिलीज एंड सोसाइटीज के ऊपर पूछे हैं. तो मैंने इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज पे क्या नेगेटिव्स हैं वो डाल दिया, सोसाइटीज पे क्या नेगेटिव है वो डाल दिए हैं. वन साइडेड ऐसे बन गया, ठीक है. You can of course write an essay in any way. I've taught you all the methods of writing. आप अपने मेथड से, अगर आपके पास एग्जाम्पल्स है, आप अच्छा एग्जाम्पल को इलेबोरेट करके एक 2-3 पॉइंट से टोटल ऐसे बना सकते हो, ठीक है. Should we move to the next essay now, if that is done? Yes, ma'am. Okay. Next essay is, scientists say that junk food is harmful to people's health. Some say the way to ask people to eat less fast food is to educate them, while others say education does not work. Discuss both sides and give your own opinion. अब जंक फूड साइंटिस्ट कहते हैं हार्मफुल है, और फिर कुछ लोग कहते हैं ये तो फैक्ट है, साइंटिस्ट कहते हैं जंक फूड हार्मफुल है. ये तो आप सबको पता ही है ना, जंक फूड, फास्ट फूड हार्मफुल टू हेल्थ है. और साइंटिस्ट कहते हैं कि बेस्ट वे है कि लोगों को कहने का कि ये मत खाओ, उनको एजुकेट करो, फिर वो नहीं खाएंगे. और बाकी लोग कहते हैं एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला, जिन्होंने खाना खा ही जाना है. Not to educate them, but to portray our own example in front of them. So it will be more beneficial for each and everyone, not just by educating them. Yes. See, like for example, for tiny tots also, we portray some examples in front of them rather than only educating them. अच्छा, आप बताओ कौन सी एग्जांपल देते हो बच्चों के आगे? Ma'am, like sometimes to tiny toads we can give, if we are teaching anything, we give some examples. If we are teaching 5th, 6th, 7th and 8th, we give our own life experiences
And if you want to show this, you don't eat fast food and all, show that I had my own experience that uh, my liver infection. I got liver infection by eating a lot of fast food regularly. We can also portray like this. And one of my student, he got worst effect on his liver or stomach, because on the nerves of the stomach, because he used to eat a lot of fast food regularly. आपके बच्चे ने पता है क्या बोल रहा है आगे से? Yes. उसने अच्छी शॉप से नहीं लिया होगा. हाँ, वो होता they है. will have answer for Yes, everything. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Educating will not help. मैं तो दूसरा पॉइंट रख रही हूँ. Educating will not help. ये educating ही है. आप अपनी एग्जांपल दे रहे हो ना, ये educating ही है in a way. ओके. Yeah. हाँ, तो एजुकेटिंग से आप जितनी मर्जी एड्स दे दो कि ये मत खाओ, लोगों ने खाना ही खाना है. Yeah. अच्छा, अब आप एजुकेटिंग विल नॉट हेल्प. जो कहते हैं एजुकेटिंग करो, वो ये कहते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स लोगों को बताओ, मीडिया की हेल्प लो, लोगों को बताओ इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इनमें फैट है, शुगर है, सॉल्ट है, प्रिजर्वेटिव है, इन सब से आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है. ठीक है. और ये सब कम करो. ठीक है. और फिर जो लोग कहते हैं कि एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं कि फास्ट फूड लोग क्यों खाते हैं? वो टाइम खाते नहीं हैं होता कुक करने हाँ, का. चीप है, टेस्टी और है, easy. रेडिली अवेलेबल हाँ. है. To satisfy their Readily available. टेस्ट बड्स Yeah, आल्सो. taste और buds. उनके पास कुक करने का टाइम नहीं है, सस्ता है तो कहते चलो आज यही मंगा लेते हैं. ठीक है, ये खा लेते हैं. और वो देखते हैं कि जो सेलेब्स है, यंग पीपल देखते हैं सेलेब्स ऐड दे रहे हैं इसकी, तो ये अच्छा ही होगा. पर वो उनको ये नहीं पता सेलेब्स तो कभी खुद खाते भी नहीं है. मतलब ये एजुकेशन इसलिए हेल्प नहीं करने वाली क्योंकि लोग इनको जिस वजह से खाते हैं वो वजह ही कुछ और है. उनसे उन पे एजुकेशन का कोई असर नहीं होने वाला. टाइम नहीं है, चलो ये मंगा लो, ऑर्डर दे दो, क्योंकि सस्ता है. अगर आपको बहुत महंगा पड़ेगा फिर आप रोज रोज ऑर्डर नहीं दोगे वो चीज को. ठीक है. Yes. सो एजुकेटिंग से बेटर क्या है? तो मैंने ये लिख दिया एक X और पैरा वो कि सब. एजुकेटिंग से बेटर ये है कि आप फास्ट फूड आउटलेट्स को बोलो कि अपना जो खाना है उसको हेल्दी करो. अब देखो इन्होंने बहुत बहुत फास्ट फूड आउटलेट्स ने अपना खाना हेल्दी बनाने की भी बहुत कोशिशें की है. ठीक है. अब देख लो ब्रेड है, अगर आप सबवे जाओ And ब्रेड like है. we have in lockdown we have also opened home kitchen, and in that now we have introduced multigrain pizza. Multigrain pizza means with the base of हाँ multigrain. हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, मल्टीग्रेन ब्रेड है उसमें, सबवे में भी वही Yes. यूज कर रहे हैं. और ये डेफिनेटली. एंड देन यू यूज ऑलिव ऑयल, डोंट यूज एनी अदर ऑयल. Okay, Yes. you use the best cheese. You use so many green vegetables in the pizza. It will be healthier than your healthy traditional food. Okay, बच्चे वैसे गाजर नहीं और खाएंगे, वैसे भी खा कैप्सिकम नहीं लेते खाएंगे, हैं. हाँ. है ना, इसमें हाँ, सब खा उसमें लेंगे. डाल के खा सकते हाँ, हैं. सब खा लेंगे. So what can be done is to make this fast food healthier. Okay, so that is the way. दोनों के व्यूज देके फिर अपना व्यू दे दो. अपने व्यू में ये कहो कि मेरे हिसाब से तो फास्ट फूड को हेल्दी करना बेटर है. ये डिस्कस ऐसे है ना, वन साइड के व्यू दे दो, क्यों लोग कहते हैं कि एजुकेट करो, दूसरे कहते हैं क्यों एजुकेशन हेल्प नहीं करेगी, और तीसरा पैरा अपने व्यू का दे दो कि उससे बिल्कुल नहीं हेल्प होगी और ये करना चाहिए इंस्टेड. ये फास्ट फूड को हेल्दी बनाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट ऐसे इज, in many countries, people buy imported food rather than food produced locally. Why do people do that? How can people be encouraged to eat locally produced food? Now, this is an essay on local produce versus imported food. ठीक है. अब बहुत कंट्रीज में लोग इंपोर्टेड फूड खाते हैं लोकल फूड की जगह. और क्यों करते हैं, एक पैरा तो इसका बनाना है रीजंस, और फिर आपने रीजंस के 2 पैरे भी बना सकते हो, और फिर एक पैरा बनाना है लोगों को कैसे इनकरेज कर सकते हो लोकली प्रोड्यूस्ड फूड खाने के लिए. तो उसमें आपको लोकली प्रोड्यूस्ड फूड के फायदे लोगों को एजुकेट करना है उनके बारे में. ठीक है. सबसे पहले रीजंस बताओ, इन्यूमरेट करो रीजंस. अरनीत, आप चलो. कोई जो बच्चे बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करते ना, आप सब लोग आओ आगे. See, this is so interactive. You can all, Kinjal, What the fuck? any points? Navreen, Neeti, Rohtas. Why do people eat imported food? मैम इम्पोर्टेड फूड जो है वो चीपर होता है देन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड. Sometimes, not और always. मैम
sometimes, not always. इंस्पेक्शन मतलब पूरा वो ज्यादा वो करके आते हैं। मैम क्वालिटी चेक उनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोकल फूड। हाँ, क्वालिटी चेक ज्यादा होती है। दूसरा और रीजन भी आप इसमें जो लिखे हैं उसके अलावा भी रीजंस बहुत हैं, आप कोई और रीजंस भी डाल दूसरा फूड ट्राई करने की एक्साइटमेंट होती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, दैट Yes, पीपल ma'am. वांट टू ट्राई न्यू फूड। सी, यस मैम। कुछ पहले नहीं खाया, कभी दिल करता है अच्छा ये क्या चीज है, चलो खा के देखते हैं। ओके Yes, ma'am. हाँ, अब इम्पोर्टेड, अब कीवी जब नई नई आई थी इंडिया में, कितना क्रेज था Yes. लोगों में, कीवी देखें इसको, खाएं कैसी है, टेस्टी है। फिर तो इंडिया में भी बनने लगी, पता है, इसकी प्रोड्यूस होने लग गई है, इंडियन कीवी भी आ गई है। ओके, सिर्फ बाहर थी, एवोकाडो यहाँ नहीं मिलता, अब मिलने लग Yeah. गया कई स्टोर्स पे, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, तो लोग उसकी वजह Yes. से इसको ले रहे हैं। ठीक है, और स्टेटस एक्साइटमेंट है और ट्राई करने की, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, व्हाई डू पीपल ईट दैट। दूसरा और पॉइंट बताओ इस टाइप का। चॉइस मिलती है। चॉइसेस Yeah. मिलती है, स्टेटस सिंबल भी समझते हैं कई लोग, हमने ये Yeah. खाया, टर्की का एप्पल खाया, इटली, तो ये, सो दैट इज चाहे कितना कॉस्टली हो बट फिर भी वो स्टेटस सिंबल। हाँ, यस, हम सीजनली होता है कुछ फ्रूट जो हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, इसलिए फ्रूट इम्पोर्टेंट फूड हाँ पे विशाल, that's a very good point. You can say that you can eat, see, you can eat, for example, आप एग्जांपल दे दो, मैंगो थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, फिर देखो अमेरिका में आपको मैंगो 12 महीने मिल जाता है, जबकि वहां ग्रो नहीं होता Yes. है ना। अब लोग मैंगो भी टेस्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सिर्फ ट्रॉपिकल फ्रूट है, टेम्परेट कंट्रीज में कहाँ होता है मैंगो, अब वहां मिलता है। ठीक है, और पीपल कैन एंजॉय इट। ठीक है, महंगा है यहाँ से बट इट्स ओके, पीपल कैन स्टिल ईट इट, एंजॉय इट। और बताओ। अट्रैक्टिव पैकिंग ऑल्सो ल्योर्स द पीपल, यस। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स हो गए रीजंस के। अब बड़ा अच्छे आपके पास पॉइंट्स हैं, एग्जांपल्स डाल सकते हो, 2 पैरास बना सकते हो। ठीक है, नाउ टेल मी, हाउ कैन पीपल बी encouraged to eat locally produced food? लोगों को कैसे encourage कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने कहा कि उनको educate कर सकते हैं, इसके बहुत फायदे हैं। और उसके फायदे क्या बताओगे आप लोगों को? With a good nutrition are available in this. देखो लोकल फूड है ना, फ्रेश होता है, Ma'am, I फ्रेश think फ्रेश होता है ना, राइपनिंग से थोड़ा पहले उतारते हैं और फिर यस मंडी में ले जाते हैं। लोकल फूड फ्रेश होता है और उसमें न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। हाँ, फ्रेश फूड में न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, जब फूड पड़ा रहता है ना थोड़ी देर, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। यस ठीक है, मैम एंड लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड फूड, बिकॉज उस पर हाँ टैक्स भी लगा होता है, इस पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेस हाँ, सो कॉस्टली होता है। इट इज लेस कॉस्टली। ठीक है, less costly, it is more nutritious, and it is definitely more it is tastier also. Okay, आप देखो अगर मैम लोकल फूड, एक्चुअली हम रीजंस में एक और बात लिख सकते थे, माइंडसेट, because a lot of people believe that locally produced food is not meeting their standards, and the food department of India isn't doing their job properly by checking the local shops and all the ये exploit पॉइंट, government system. हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है जसप्रीत। वी हैव पुट दिस पॉइंट, थोड़ा भी लोकल फूड पे ना क्वालिटी चेक नहीं, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ज्यादा। बाहर से जो लाया जाता है उस पे, यहाँ से भी, यहाँ वाले भी लाने से पहले क्वालिटी चेक करते हैं, और वहां से भेजने से पहले भी वो कंट्री भी क्वालिटी चेक करती है, सो दैट उनको कोई बुरा नाम ना मिले कल को, और कल को और ऑर्डर्स आए। ठीक है, सो इट इज क्वालिटी चेक्ड, so that is why only the best foreign produce ends up in the market. ठीक है, अब देखो यहाँ से भी बाहर कुछ जाता होएगा, अब वहाँ यहाँ से जो बाहर भेजते हैं वो उसकी क्वालिटी चेक करेंगे ना, कि बाहर से दोबारा हमें ऑर्डर आए, वो कहेंगे इंडिया से ये चीज आई है, अच्छी है, ये दोबारा मंगाओ। ठीक है, तो जो इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टेड फूड है, उसकी क्वालिटी चेक होती है। ठीक है, और जो लोकल प्रोड्यूस है उस पे ट्रस्ट होता है कि लोकल ही है, इसकी कोई क्वालिटी चेक होती नहीं है, जबकि होनी चाहिए उसकी भी। ठीक है, चलो ये हो गया आपका हाउ कैन पीपल बी एनकरेज्ड। और उससे एक और पॉइंट है जो एनकरेज कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट ना लोकल प्रोड्यूस को सब्सिडाइज कर सकती है, ताकि और भी सस्ता हो जाए, और फिर लोग इसको खरीदने पे मोटिवेट होंगे और कंज्यूम करने पे मोटिवेट होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऐसे इज
Some people support the development of agriculture, like factory farming and scientific creation of fruits and vegetables, while others oppose. Discuss both views and give your opinion. We have discussed this essay. Okay, but I'll ask some new students. What do you understand by the term factory farming? हाइब्रिड मैम नहीं. हाइब्रिड No, पता dairy है, product. even I did not know the meaning. अगर मैं इसको स्टडी करे बिना ये मुझे ऐसे लिखना पड़ जाता तो मैं तो मन में ये सोच रही थी फैक्ट्री फार्मिंग है कि जैसे फार्मिंग इन ए फैक्ट्री करी जाती है कि थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा क्रॉप उगा लेंगे एज ए फैक्ट्री, इसका ये मतलब होगा. बट व्हेन आई चेक द डिक्शनरी इट वाज ए टोटली डिफरेंट मीनिंग. आई विल जस्ट शो यू. ओके, सो Dairy product. हाँ वो मैम उसमें थोड़ी जगह पर बहुत ज्यादा एनिमल रखने और जिससे वो सफाई नहीं होती इतनी, मींस डिजीजेस हो जाते हैं. हाँ ये देखो मैं फैक्ट्री फार्मिंग है. व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस टर्म कि अच्छा दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू प्लांट्स, ये एनिमल्स का है. मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच एनिमल्स आर केप्ट इनसाइड इन स्मॉल स्पेसेस and are fed special food so that a large amount of meat, milk, etc. is produced as quickly and cheaply as possible. ठीक है, ये है फैक्ट्री फार्मिंग. और बैटरी फार्मिंग भी एक टर्म है. एनिमल्स ऑन ए बैटरी फार्म क्या होता है? A farm where large number of chickens or other animals are kept in very small cages or crowded conditions. ठीक है, अब देखो फैक्ट्री फार्मिंग, animals are kept in small spaces and fed special food. बैटरी फार्मिंग, very small spaces, unhygienic. ठीक है, और एक और टर्म थी अभी हमने इससे पहले करी थी, बैटरी फार्म में एक और टर्म करी थी, फ्री रेंज फार्मिंग. फ्री रेंज फार्मिंग है, एनिमल्स आर केप्ट इन नेचुरल कंडीशंस एंड कैन मूव अराउंड फ्रीली. तो आप इसका जब इस ऐसे में आप ये वाली टर्म्स डाल सकते हो. मैंने पिछली बार ये ऐसे डिस्कस कराया था. आई थिंक रीना यू रिमेम्बर वी डिस्कस दिस ऐसे. यस मैम. यस, तो मैंने ये टर्म्स तब भी कराए थे कि अगर आप अब लिखो, तब मैंने तो पहले ये इतनी स्टडी नहीं करी थी लिखने से पहले, ये आप वोकैबुलरी डाल सकते हो. एंड बिलीव मी दिस ऐसे हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, बहुत देखने को मिल जाता है इससे. ओके, एंड अगर पढ़ के नहीं जाते बच्चे तो ये ऐसे ऐसे है, इसमें इसके पॉइंट्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं फिर बनाने. यस मैम. ठीक है, ओके. सो ये है फैक्ट्री फार्मिंग और एग्रीकल्चर, न्यू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लाइक फैक्ट्री फार्मिंग एंड साइंटिफिक क्रिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब साइंटिफिक क्रिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए क्या टर्म है? GM फूड, GM फूड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. ठीक है, अब जब मैं पढ़ाने लगी थी 2006 में आइल्ट्स, तो मुझे कहते हैं मैम लैंग्वेज ही है, करा लोगे आप. जब ऐसे ऐसे आने लगे तो पता चला लैंग्वेज से कुछ नहीं होने वाला, जीके भी होनी चाहिए. सही है. हाँ जी. अब मैं बिना ये पढ़ के जाऊं और मेरे को पहली बार ये ऐसे लिखना पड़ जाए, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू ए गुड जॉब ऑफ इट. ओके, इंग्लिश के बेस पे कितने बैंड आ जाएंगे, और लिखना क्या है ये भी तो हाथ में होना चाहिए ना, अंदर कंटेंट क्या डालना है इससे में. एंड फॉर दैट मैम इज इट सेम एज ब्रीडिंग, साइंटिफिक क्रिएशन? Yes, but it's scientific creation is same as that in a way. तभी तो जो लोग for GM foods हैं वो यही कहते हैं कि ये तो बहुत सदियों से हजारों सालों से चला आ रहा है. देखो हम वीट है उसकी क्रॉस ब्रीड करके भी तो कोई और चीज बन सकती है. बेसिकली इट्स दैट ओनली. ठीक है, वो जो फॉर है वो तो यही कहते हैं कि ये तो सदियों से नई चीज नहीं है, हमने तो नाम अब दिया है इसको. मैम दोबारा से बताइए पॉइंट जो अभी आपने वीट का बताया. मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कि जो इवन एक वैरायटी राइस की है जो कि वीट से हाइब्रिड की हुई है. ओके मैम. हाँ, तो ऐसे मतलब अब यही तो GM फूड्स हैं और वो कहते हैं दिस इज जस्ट ब्रीडिंग, और ये तो हजारों सालों से चल रहा है, साइंटिस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स कर रहे हैं. ठीक है, हमने तो सिर्फ इसको नया नाम दिया है. बेसिकली इट्स समथिंग व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन. ओके, जो फॉर है वो ये कहते हैं, जो अगेंस्ट है वो कहते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है, वी आर प्लेइंग विद गॉड, वी आर प्लेइंग गॉड, नॉट विद गॉड, वी आर प्लेइंग गॉड. हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के जीन्स को ऑल्टर करें. दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड.
टमाटर में फिश का जीन डाला, टमाटर पे कोहरे का असर होना बंद हो गया. द टोमेटो बिकेम फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट ऑन एडिंग अ फिश जीन. ऐसे ही एप्पल्स, जो आर्कटिक एप्पल है उसमें क्या कर रहा है, जो काट के एप्पल को काट के रखो ब्राउनिश हो जाता है ना, तो उसमें वो वाला जीन निकाल दिया है जो ब्राउन करता है. तो एप्पल, आर्कटिक एप्पल, वो अब ब्राउन ही नहीं होता, काट के रखो ऐसे का वाइट रहता है. ठीक है. सो दिस इज जीएम फूड and modifying the Ma'am, genes. I think one more example is in apple, like they have coated it with wax so that it looks more attractive. No, That is not the example of that is genetic not. Yeah. modification. Okay. हाँ, वो देखो genes alter करने, that is example ना. Give such examples. Yes, ma'am. Okay, ये genes alter करने किसी चीज के to make something new out of it. Okay. अब सोयाबीन में नट का जीन डाला है, तो सोयाबीन का नट प्रोटीन कंटेंट और बढ़ गया. ठीक है. बट उससे नुकसान, जो नेगेटिव एंटी है, वो कहते हैं कि उससे जिनको नट एलर्जी थी उनको सोयाबीन से एलर्जी होने लग गई. ठीक है. सो लाइक दैट यू कैन से थिंग्स लाइक दैट. तो दिस इज जीएम फूड. जीएम फूड्स एंड फैक्ट्री फार्मिंग दोनों डाल दिए कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, बाकी कहते हैं ये गलत है. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. ठीक है. अब मैं, क्योंकि अब मुझे टर्म्स पता चल गई हैं, बैटरी फार्मिंग, एंड मुझे टर्म पता चल गई है, तीसरी कौन सी थी, ओपन, व्हाट वाज दैट, फ्री रेंज. तो आई विल से कि फैक्ट्री फार्मिंग इज स्टिल बेटर देन बैटरी फार्मिंग. तो मैं इसके फॉर लिख सकती हूँ. इसमें फैक्ट्री फार्मिंग और फ्री रेंज फार्मिंग इज बेटर देन बैटरी फार्मिंग. बैटरी फार्मिंग में बहुत क्राउडेड अनहाइजेनिक स्पेस में एनिमल्स को रखा जाता है. लोगों के पास जगह नहीं है, पर उन्होंने बैटरी फार्मिंग करनी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चिकन बेचने हैं, बहुत सारे ये अंडे पैदा करवाने हैं, बहुत सारे ऐसे मीट, बीफ वगैरह बेचना है. तो बहुत टाइट स्पेसेस में रखते हैं एनिमल्स को, विच इज नॉट इवन हेल्दी फॉर द एनिमल्स. But they are doing it because of lack of space. उनको पैसे कमाने हैं बस. They are not bothered about the animals' health. ठीक है. एंड ये वो खराब है. बट फैक्ट्री फार्मिंग इसका पॉजिटिव ये लिखना है कि वो ये जो पॉजिटिव कहते हैं वो ये कहते हैं कि इट इज नीडेड टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बर्जियानिंग पॉपुलेशन. इट इज नीडेड. ठीक है. जो लोग खाते हैं नॉन वेज वगैरह या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो भी है, इट इज नीडेड टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स. दैट इज व्हाट दे से. और जो नेगेटिव है वो कहते हैं एनिमल्स आर केप्ट इन बैड सराउंडिंग्स एंड दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ प्रॉपर्ली. दिस इज बैड, इट शुड नॉट बी डन. ठीक है. सो अपने वाले जो आई बिलीव दैट करना है ना, उसमें कर देना कि फ्री रेंज फार्मिंग करनी बेटर है. और फैक्ट्री फार्मिंग में भी जहाँ एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल. ठीक है. एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए आप फॉर लिखना है या अगेंस्ट लिखना है, आप जो मर्जी लिख सकते हो. आप जो मर्जी लिख सकते हो अपने व्यू में, और एंड में आप वो लिख दो कि आई एम विद दैट साइड. आपको दोनों के पॉइंट्स पता चल गए अब. ठीक है. जीएम फूड्स के बेनिफिट्स क्या है, आपको मैं बिल्कुल इजी बेनिफिट्स बताती हूँ जो आप अपने आइल्स के एसे में डाल सकते हो. जीएम फूड्स बहुत कम समय में और बहुत कम जगह पे आपको ज्यादा क्रॉप मिलती है. यू कैन हैव मोर यील्ड इन लेस टाइम एंड लेस स्पेस. ये आप लिख सकते हो. कितना इजी बना दिया मैंने. मोर यील्ड in less time and less space. This is needed to meet the demands of the growing population. Can you write the simple wording? Yes. Second benefit is yes. The second benefit is that these foods do not need insecticides and pesticides, so they are healthier. ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज कि ये ऐसे में मैंने पॉइंट डाला हुआ है, some modifications are there in which the shelf life of fruits and vegetables is increased, and so it reduces waste and ultimately it benefits the environment. Shelf life अगर बढ़ जाए खाने की, खराब ना हो, तो automatically it is good. ठीक है. और जो अपोज करते हैं वो कहते हैं कि अननेचुरल है, न्यू है, हार्मफुल इफेक्ट्स अभी पता नहीं है. अनदर इज कि हाँ, एक वो नेगेटिव पॉइंट ये देते हैं कि रिच कंट्रीज जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज करके और ज्यादा रिच हो जाएंगी, और जो पुअर कंट्रीज है जो अभी मैनुअल वर्क पे डिपेंड करती हैं और इस पे नहीं डिपेंड करती जीएम फूड्स पे और न्यू इन पे, उनमें क्रॉप की प्रोड्यूस कम होएगी, वो और पुअर हो जाएंगी. तो रिच पुअर गैप बढ़ेगा.
ठीक है, वो ये पॉइंट भी कहते हैं। और फिर मैंने ये कह दिया कि मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है ज्यादा। ठीक है, दैट इज इट। तो ये ऐसे अब आप लिख लोगे, थोड़ा टेक्निकल एंड टफ ऐसे है, बट इट हैज बीन सीन इन द पास्ट एंड फॉर द जीटी स्टूडेंट्स दे विल नॉट गेट दिस ऐसे, ये ज्यादा टेक्निकल है टू कम इन द जीटी, बट ये क्वेश्चंस आपको स्पीकिंग के फॉलो अप्स में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज पॉइंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। इट इज नॉट अ वेस्ट टू एक्सपैंड योर नॉलेज एंड वोकेबुलरी ऑल्सो। ठीक है, you know about free range farming now, you know about battery farming, you know about factory farming now. Okay, so these are the terms you have learned, and who knows, you might get a reading passage based on this. GM Foods पे reading passage आए हुए हैं पास में। Okay, अगर थोड़ी knowledge होती है तो आपको answers भी जल्दी मिलते हैं। ठीक है, like that. Okay, next essay is, okay, this essay is also similar. It is known to all that technological and scientific advances have made great changes to the range and quality of our food. Some people regard it as an improvement, while others believe that the change is harmful. Discuss both views. ये same essay है, बस इसमें factory farming word नहीं है. So I will not be touching this essay now. ये आप कर सकते हो, पढ़ लोगे आपको और points भी मिल जाएंगे, आप जो मर्जी डालो। अच्छा, ये एक और essay है जो मैंने book में लिखा नहीं है. This is also the same essay. It has come in this wording also in the past. Food can be produced much more cheaply today because of improved fertilizer and better machinery. However, some of the methods used to do this may be dangerous to human health and may have negative effects on local communities. To what extent do you agree or disagree? ये भी same agree disagree form में वही essay है, वैसे ही points है. ये लिख लोगे ना अगर आ गया ऐसे? ये agree disagree format में है. ओके, व्हेन यू गो थ्रू द पॉइंट्स, इस एस्से को भी सामने रखना कि अगर हमें ये एस्से आया तो हमने क्या लिखना है इसमें. ठीक है, अब बाकी एस्सेस हमने पहले करे हुए हैं. सो आज मैंने तीनों कैटेगरीज के एस्सेस कंप्लीट कर दिए. नाउ यू विल टेल मी इफ यू हैव एनी, यू वांट मी टू डिस्कस एनीथिंग एल्स टुडे. आई एम हियर फॉर यू. और आज मैं मॉक टेस्ट डालूंगी. जीटी वालों का तो रोज ही मॉक टेस्ट है, उनको तो रोज टॉपिक्स हैं लिखने के. एकेडमिक की बात हो रही है तो मॉक टेस्ट डालूंगी. मॉक टेस्ट में राइटिंग कुछ बच्चे मुझे अगर आज भेज देंगे, इट विल हेल्प मी कंप्लीट माय वर्क टुमारो इन टाइम. तो बाकी भी मुझे सारे बच्चे कल 12 बजे तक भेज दें पूरा लिख के. यू हैव 24 आवर्स, मोर देन दैट. उसके अंदर अंदर राइटिंग लिख के भेज सकते हो सब जने? यस मैम. यस मैम. ओके, चलो. तो कुछ और डिस्कस करना है? एनीथिंग एल्स? मैम एक ना लीडरशिप वाला ऐसे है जो एग्जाम में आया था, मुझे उसके पॉइंट नहीं आते. मैं ही कर देती हूँ. लीडरशिप कीवर्ड भरती हूँ. हाँ, अभी आया है और आ सकता है दोबारा. आजकल तो बहुत जल्दी. दिस इज द एसे व्हिच हैज बीन सीन. यही है. ठीक है, अब मैंने नया एडिशन में डाल दिया है. ओके. Some are of the opinion that people are naturally born as good leaders, while others feel that leadership skills can be learned. Discuss both views and give your opinion. ये ना sort of nature versus nurture ऐसे है. Nature versus nurture term आपको पता है क्या मतलब है उसका? What is nature and what is nurture? Yes. हाँ बोलो. Ankit, can you speak? What do you understand by nature and nurture? Elish, Amandeep, Vishal. Nurture, inbuilt skills. नेचर क्या है? Ma'am, inborn qualities. Nature, ma'am, we are born quality. Yes, nature is genes, heredity. Yeah. And nurture is Ma'am, upbringing. And external factors. Nurture. Okay. नेचर वर्सेस नर्चर का है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग नेचुरली गुड लीडर्स की तरह बॉर्न होते हैं और बाकी कहते हैं कि लीडरशिप स्किल्स जो है वो सीखी भी जा सकती है. ठीक है, अब आप हमारी कंट्री का एग्जांपल ले लो. वैसे हंसी मजाक के लिए एज ए जोक कह रही हूँ. लीडरशिप स्किल्स कब से सीख रहा है वो?
कौन है ये? राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी तक तो आई नहीं उसको। और हाँ, ठीक है, और और इसकी लीडर्स, फैमिली में भी तो सारे लीडर्स थे, फिर भी लीडर्स नहीं हैं, आई। फिर भी नहीं आई, है ना? यस हाँ, मैम, यस मैम। हाँ, तो जो 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 आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके बैकग्राउंड में कोई लीडर नहीं है फैमिली में, एंड ही इज वही। बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो लीडरशिप स्किल्स आप कह सकते हो लर्न की जा सकती हैं, उसमें आप एग्जांपल दे या सकते हो ये वाला, ठीक है। और इनबॉर्न होती है वो, आप अब देखो ऐसे कैसे लिखा है, ये ऐसे अभी रिसेंटली लिखा है। लेट्स सी, लेट्स रीड इट आउट सो दैट ये आ सकता है भाई। अब इंडिया में आया है तो बाहर वाले बच्चों को तो डेफिनेटली उनके लिए तो कभी भी इम्पोर्टेंट है, और इंडिया में भी एवरी 2 months रिपीट हो रहे हैं सेम ऐसे सेम ग्राफ, ओके आजकल। It is believed by some that people are born with certain characteristics that enable them to become great leaders, while others assert that leadership skills are learnable. In this essay, both views will be discussed. Personally, I believe that training and experience can make better leaders than any innate ability. तो मैं कौन से साइड के साथ गई हूँ? नर्चर, मतलब हाँ, सेकंड साइड के साथ गई हूँ, सेकंड ठीक है? जो कहते हैं कि लर्नेबल है। तो मैंने ये लिखा है कि अब लीडरशिप की बात है ना, यही ऐसे होता है सिंगिंग के बारे में, म्यूजिक के बारे में, तो मैं शायद इनेट उसके ज्यादा जाती, या ठीक है। तो ये आपको बस देखना है कि क्या ऐसे, अब स्पोर्ट्स का ऐसे आ जाए स्पोर्ट्समैन, उसमें भी आप ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ज्यादा कह सकते हो, ज्यादा ठीक है। हाँ, सो ये आपको देखना है कि आपने किस तरफ जाना है, किस टाइप का ऐसे है। द मेन रीजन वाई सम पीपल बिलीव, अब डिस्कस ऐसे हैंडल करना सीखो। द मेन रीजन वाई सम पीपल बिलीव दैट, सम पीपल, आपके व्यूज नहीं आए अभी, अभी आपको पहले पैरे में सम पीपल के व्यूज देने हैं। The main reason why some people believe that leadership qualities are inborn. अब यहाँ पे कई बच्चे because लगा देते हैं, because नहीं लगना है, is that आना है। The main reason is that leadership is based on personality traits which either a person possesses by birth or does not. For example, people who are naturally outgoing and extrovert get followers. Another great leadership trait is handling stress, which all the leaders face at one time or another. People's genetic makeup influences their behavior, and those who are naturally balanced and composed handle stress more easily. According to them, leadership cannot be taught, and people who do not possess these natural traits fail at leadership. उनके हिसाब से जिन लोगों के पास ये ट्रेट्स बर्थ से नहीं होती, वो लीडर्स बन ही नहीं सकते, फेल हो जाते हैं, ठीक है। मैम अब हियर वी उनके कैन से कि इंजीनियर का बच्चा जो है, इंजीनियर का चाइल्ड है, वो डॉक्टर बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर ही बने। हाँ, वो अगले पैरे में डालोगे ना, यहाँ ये इसमें ही आएगा, है ना। सपोर्ट कर नहीं, रहे हैं इनबॉर्न, ये तो इनबॉर्न के बारे में बता रहे हैं ना, इसमें नहीं बताओगे। अच्छा, वो जो आप कह रहे हो ना, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये लोग कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर्स हैं, आपके बच्चे क्या इंजीनियर? अच्छा, डॉक्टर नहीं बनाया आपने? तो ये डॉक्टरों के बच्चे तो डॉक्टर बनते हैं, ऐसे नहीं होता। डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको घर में माहौल मिल जाता है वैसा पढ़ाई का, और वो देख रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स एज डॉक्टर्स बड़े सक्सेसफुल है, तो हमें भी डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो वो मेहनत करके डॉक्टर बन जाते हैं, ये नहीं होता कि उनके अंदर जीन्स है डॉक्टरी के, ठीक है। और दूसरा, मेरे मेरे बच्चे क्यों नहीं डॉक्टर बने? क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ इतनी खराब देखी है ना, रात रात को जाग जाग के डिलीवरी केस करना, और तो मेरी बेटी को किसी ने, शी वाज इन 8th और 9th, पूछा बेटा बड़े होके क्या बनना है? कहती है मैम एक चीज सर्टन है, डॉक्टर नहीं बनना, बाकी मैंने अभी नहीं सोचा, ठीक है। तो इतना वो देख रही थी कि मम्मा पापा की कोई लाइफ ही नहीं है, ये तो 24 घंटे काम करते हैं इनका, तो उसको ये श्योर था। और बहुत साल बाद उसको मैं एक आई डॉक्टर के पास लेके गई, उसकी आई साइट चेक कराने, तो मुझे कहती है मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। ऐसी डॉक्टर तो मैं बन सकती थी, ये कमरा है अच्छा सा, एक चेयर लगी है उसमें सामने बस वो रीड कराना है, ये डॉक्टर तो मैं बन सकती, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। तो मैंने कहा ये बातें भी, अब ये भी है टर्म्स। तो ये ऐसे मैं बता रही हूँ कि वो, ये आप इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर नहीं, वो उस पॉइंट के लिए मैंने ये पॉइंट रेज किया। पर यहाँ पे हमने ये एक पैरा, क्योंकि मेरे तो ये व्यूज है ही नहीं, मैंने उन लोगों के व्यूज रखे हैं जो कहते हैं कि लीडरशिप स्किल्स इनबॉर्न है, मतलब सिखाई नहीं जा सकती। वो ये कहते हैं, उनके रीजंस डालने के लिए ये पॉइंट्स नहीं थे ना। कौन सी किस बच्चे ने बोला है कि पॉइंट्स चाहिए?
मैम गुरप्रीत मैंने गुरप्रीत आप देखो, अब ये सच में ये पॉइंट्स आपको पढ़ के ही लिखोने हैं, ये यस है मैम कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि लीडरशिप के लिए स्ट्रेस मैनेज करने की होनी चाहिए इनबॉर्न एबिलिटी। अब कई लोगों में होती है तो वो अच्छे लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडर्स को स्ट्रेस तो होता ही है, कोई ना कोई समय आता है उनके लाइफ में जब उनको स्ट्रेस होता है, और जो लोग स्ट्रेस हैंडल कर पाते हैं वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो स्ट्रेस हैंडल कर पाना इनबॉर्न एबिलिटी है, उन्होंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, और कुछ लोग नेचुरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो जो इंट्रोवर्ट है वो कभी लीडर नहीं बन सकता, वो अपने आप में सिमट के रहेगा। इंट्रोवर्ट होता है जो ज्यादा आगे बढ़ के किसी से बात नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट होता है जो किसी से भी बात कर सकते हैं, आउटगोइंग होते हैं, किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि लोगों का जो जेनेटिक मेकअप है वही डिटरमिन करता है कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, इसलिए वही लोग अच्छे लीडर बन सकते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप में लीडरशिप स्किल्स हैं। और लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं? एक्सट्रोवर्ट होना, स्ट्रेस हैंडल कर पाना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी वो एक्सट्रोवर्ट में आ जाती हैं। ठीक है, तो उनका ये पैरा गुरप्रीत अब बन जाएगा अगर ऐसे आया। यस मैम दिस इज वेरी वेल रिटन। दूसरा पैरे में क्या लिखना है? ऑन द अदर हैंड सम पीपल थिंक लीडरशिप स्किल्स आर नॉट इन द पर्सन्स डीएनए। वो कहते हैं लीडरशिप स्किल्स उसके डीएनए में नहीं होती, दे कैन बी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, education and training. Experiences and circumstances prepare people to deal with success and failure. Good communication skills and formal speaking are the essential traits of leaders and can be learned through formal training and a well-rounded education. Creativity is another leadership skill that parents and good teachers can help children develop. तो ये भी समझ आ गया पैरा कैसे लिखना है? ये सब कुछ सीखा जा सकता है। I believe that while there are many skills that can be inborn, leadership is not one of them. And any person can be groomed to master skills for becoming a good leader. It is a fact that children of many good leaders have failed as leaders. अभी जो हमने point किया था. But those with no such background have risen to great heights as leaders. और मैंने उसमें नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया है, कितनी हम्बल बिगिनिंग्स में उनके बर्थ हुए। ठीक है, और उन्होंने टॉप की पोजीशंस लीडरशिप पे ली है कंट्री में, इंडिया में। इनके एग्जाम्पल्स अच्छे हो सकते हैं ना ये डालने के लिए। यस मैम, ठीक है, बहुत अच्छे। So in conclusion, there is no doubt that becoming a good leader is challenging, but this does not mean that only people with innate talent can become good leaders. ठीक है? Yes, ma'am. ये लेटेस्ट मेथड से ही लिखा हुआ है। 1 सेंटेंस कंक्लूजन है, 2 सेंटेंस इंट्रो है। ठीक है, और फिर एक पैरा एक साइड के व्यूज, फर्स्ट सेंटेंस उसका लिखना मास्टर करो अगर डिस्कस से आ जाए, दूसरा पैरा दूसरे साइड के व्यूज, तीसरा पैरा अपने व्यूज। ठीक है, और उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं इस पैरे में सेकंड वाले पैरे के साथ वाले उसी पॉइंट में हूँ, पर मैंने इसमें अपनी एग्जांपल डाल दी और कुछ ऐसे रेपिटेटिव वर्डिंग नहीं आई है। ठीक है, व्यू मेरा वही है पर वर्डिंग रेपिटेटिव नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम। एनी अदर ऐसे, एनीबॉडी? मैम आज के रिलेटेड कोई आता तो उसमें थोड़ा हार्ड पड़ता है। एक मिनट, नेचर नर्चर की बात कर रहे हो? नेचर नर्चर ऐसे सभी कर लेते हैं और जो है बुक में। नहीं मैम, वो आर्ट के रिलेटेड होता है ना। हाँ, आर्टिस्ट और आर्ट। हाँ, में थोड़ा जो टॉपिक नहीं बनता वो थोड़ा आर्ट वाला। कौन सा ऐसे बेटे बताओ? आर्टिस्ट फ्रीडम, artists. Some people say that every human being can create art. ये भी nature nurture है. Others think only people born with ability can create art. Discuss both views. ये भी nature nurture ऐसे है. आर्टिस्ट गिव फ्रीडम, ऐसा कुछ they have
एक ऐसे है, some people say government should provide assistance to artists, other people say it is a waste of money. Discuss both. Freedom वाला, artists of freedom वाला. हम ये शायद प्राइवेट लाइफ के बारे में बोल रहे, जो आर्टिस्ट जो सीक्रेट रखते हैं। आप बेटे अगले हफ्ते तक वो ऐसे का टॉपिक प्रॉपरली ढूंढ लेना, मैं करा दूंगी आपको क्लास में Okay, okay, डिस्कस। हाँ Ma'am, मैम। this was the one I got in my academic IELTs back in 2018. ये वाला मनी इन आर्ट। Yeah, exactly this one. हाँ, ये सारे पास्ट एसेस ही कंपाइलेशन है बुक में, ये सारे पास्ट, सो दे आर बीइंग रिपीटेड। ये तो इस वजह से ये बुक है ना जो बड़ी हेल्पफुल है, चाहे कुछ ऐसे जो पहले के लिखे हुए हैं बहुत अच्छे नहीं है ऐसे लिखे हुए, अब हमने मेथड एक डिवाइस कर लिया है कि इस मेथड से लिखने हैं, एंड दैट इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको एक मिल गया तरीका, अच्छा ये आएगा तो ऐसे लिखना है, ये आएगा तो ऐसे लिखना है, एंड उसी की प्रैक्टिस करो, एंड यू विल गेट मास्टरी इन दैट, एंड देन यू विल गेट योर गुड बैंड। और महीने 2 महीने में अगर आप मेहनत कर लो तो आप आइल्स की राइटिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये इजी मैम मेथड्स हैं। आपने हाँ मैम आपने ये सब मुझे सितंबर में एक ऐसे आया था कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि बच्चे रहने में ही अच्छा है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इट इज बेटर टू गेट ओल्डर, सो डिस्कस बोथ द व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। अच्छा, या एकेडमिक में? हाँ, एकेडमिक में। ओके, अच्छा चलो इसको डिस्कस करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। सम पीपल बिलीव दैट इट इज बेटर टू रिमेन चिल्ड्रन फॉरएवर। Yeah, it's better to like child phase is better than the adult period. वो तो है ऐसे, चाइल्डहुड इज बेटर देन एनी अदर, वो देखे ऐसे, दैट ऐसे इज देयर इन माय बुक। Okay. चाइल्डहुड इज द बेस्ट एज ऑफ लाइफ, कुछ ऐसे है। या ऐसे ऐसे ही है, हाँ ऐसा ही था। वो ऐसे है मेरे पास, वो ऐसे ना जीटी की बुक में है, मैं वो बुक खोलती हूँ तो देखो, जीटी वाले ऐसे एकेडमिक को आ सकते हैं। या हाँ, हम एकेडमिक केसेस भी जीटी को आ सकते हैं? नहीं नहीं आ जीटी सकते। को इतने टेक्निकल नहीं आते हैं कभी भी। ओके। आपने वो आर्टिस्ट वाला क्लास में डिस्कस करवाया कि अभी बाकी आप करवाने वाले हो? कौन सा? वो वो आर्टिस्ट अभी करवा, चाइल्डहुड वाला, आर्टिस्ट वाला मुझे मिला नहीं ना, मैंने तभी बोला है कि मुझे वो बताओ कहाँ आया पहले। आपने आगे हाँ आपने आगे करवाया था, आपने आगे करवाया था क्लास में? मैम वो सेलिब्रिटी वाला था शायद। मैंने सेलिब्रिटी अपनी लाइफ प्राइवेट रखते हैं, वो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, ओपिनियन डिस्कस करो अपने। मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, करवाया हो सकता है। Shared windows in front. Okay. Okay. ये ऐसे है, ये मेरी जीटीएस से बुक है, इसको सामने ना रखे अगर रखे साइड पे रखी था चाइल्डहुड। Childhood is the best phase of life. ये निराली ये ऐसे था। Is it the same or bit different? No, it's like bit different. Like childhood is the best phase of life, and other people believe that it is better to get elder. Like
elder phase is better, or the अच्छा, other phase okay, of okay, life is better. Yeah. okay, okay, okay. Childhood is the best and other age is best, and discuss both. Yeah. चलो इसको Yeah, डिस्कस कर exactly. लो। अगर वो ऐसे अब निराली ने बताया तो ये ऐसे आपको आ सकता है भाई, डिस्कस कर लो। चाइल्डहुड जो बेस्ट फेज ऑफ लाइफ है वो क्यों कहते हैं कि बेस्ट फेज ऑफ लाइफ है, उनके क्या व्यूज हैं बताओ। जो गोल्डन पीरियड है वो लाइफ का। हाँ, उसमें और कोई कोई स्ट्रेस नहीं टेंशन, होता, कोई मैम टेंशन स्ट्रेस नहीं होता, हाँ एंजॉय करते हैं एंजॉय और करते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, नहीं हाँ होती। सबसे बेस्ट है हाँ करियर की टेंशन नहीं होती, हाँ। और स्टडी जो लोग इतनी कहते सीरियस हैं नहीं लेते। हाँ जो कहते हैं कि ये जो एडल्ट पीरियड है वो बेटर है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि चाइल्डहुड से बेटर है, ये बताओ चाइल्डहुड से बेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें हमको कुछ गोल मिलता है कि ये कंप्लीट करना है, या पर फिर हम चाइल्डहुड के साथ कंपेयर करके मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ। आप उसमें अगर चाइल्डहुड के पॉइंट्स देने ना, आप टीनेज के पॉइंट्स दे देते हो कि टीनेज जो है ना चाइल्डहुड का एक फेज है जिसमें बहुत स्ट्रेस होता है, उसमें बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं एंड वो बड़ा स्ट्रेस देती हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है दैट टीनेजर्स आर नाइदर कंसिडर्ड चिल्ड्रन नॉर एडल्ट्स एंड दे हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस वाला पॉइंट डाल सकते हो। when they play with children they are rebuked. You are not children anymore. Go and do something else. And when they sit with the adults, they are rebuked. Go away. Go and play. What are you doing with us? Okay. Yeah. So that is a very stressful period for the teenagers. Then they have the stress of choosing their subjects. They have the stress of choosing their career. So that is why people say that adult age is better. That is less stress. That has less stress than childhood. ओके तो मैम मैंने ये मिस्टेक की थी इसमें कि मैंने क्या लिखा था कि चाइल्डहुड तो लिखा ही था, फिर मैंने ये एडल्ट वाला, उनको दूसरा व्यू ऐसा था कि एडल्ट कैसे अच्छा है, और मैंने उसको चाइल्डहुड से कंपेयर करके उसके सारे नेगेटिव लिख दिए थे। और फिर जब ऐसे खत्म हुआ और लास्ट में 5 मिनट बचे तब मुझे पता चला कि वो ये तो मैंने गलत लिख दिया, और फिर मेरे हाँ कोई बात नहीं। हाँ पर अब आपको समझ आ गया, अगर ये ऐसे आए तो अब आप कैसे लिख सकते हो? वो लिख सकते हो कि बचपन में बहुत स्ट्रेसेस हैं, चाहे टीनेज में बहुत स्ट्रेस आ जाती हैं, ठीक है। सो लाइक दैट यू कैन पुट द स्ट्रेसेस। और ये भी स्ट्रेस लिख सकते हो कि आजकल दोनों पेरेंट्स जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में आजकल पेरेंट्स रहते हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चे निग्लेक्टेड रहते हैं, तो उनकी केयर नहीं प्रॉपर हो पाती। तो वो पीरियड आजकल बच्चों का अच्छा नहीं है, ठीक है। सो सी व्हेन आई कंपेयर माय चाइल्डहुड विद द चाइल्डहुड ऑफ माय चिल्ड्रन, आई वाज वेरी बिजी। तो मेरे को लगता है कि मैंने अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। मैंने अपनी बेटी को बोला जब उसकी बेटी हुई कि मेरे पास छोड़ जा, तो शी सेज जो गलती आपने करी है वो मैं नहीं रिपीट करूंगी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और बच्चे को नहीं छोड़ा मेरे पास। तो made me realize that I could have done that. I didn't do. I'm bad. so ये तो है कि आजकल बच्चों की जो मतलब जो केयर पेरेंट्स कर सकते हैं वो अब नैनीज और ये नहीं कर सकते, डे केयर सेंटर्स। तो आज का जो चाइल्डहुड है वो पहले टाइम के चाइल्डहुड से आज स्ट्रेसेस हैं बच्चों को, अपने उनके मन में क्या क्या चलता है डिफरेंट है, ठीक है। पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, बिजी हैं, घर में भी काम ले आते हैं। तो फिर बच्चों का ये भी पॉइंट डाल सकते हो अगर ये ऐसे आ जाए तो, ठीक है। ये आप अपने व्यू में करके डाल सकते हो कि एडल्ट लाइफ बेटर है और उसमें आपके पास अपने यू आर योर ओन मास्टर्स। बचपन में आप अपने मास्टर नहीं हो, आपको कुछ भी करना है, आपको पूछना है, ये भी नेगेटिव पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। और एडल्टहुड में आप अपने मास्टर, आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनीबडी एंड ओबे एनीबडी, ठीक है। इस टाइप के पॉइंट से आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और बताओ एनीथिंग, एनी अदर ऐसे? निराली अच्छा किया आपने शेयर कर दिया, बहुत अच्छा। ये सितंबर में ही आया था 12th को। ये अभी आया है लॉकडाउन में, अभी हो सकता है बिल्कुल। आपने मुझे पहले टॉपिक दिया होता, मैंने बुक में भी डलवा देना था। अभी जितना टॉपिक याद आए ना वो बेटे मेरे को डाल दो, we'll make the students write it. Yes, okay. It can be repeated here. Yes. चलो अब मैं ऑफ करूं अपनी मीटिंग के कुछ और है डिस्कस करने वाला? Yes ma'am. Okay. I'll be putting up the mock test, ठीक है? Yes ma'am. Okay. Bye ma'am. Merry Christmas. Bye ma'am. Bye. Happy Christmas. Merry Christmas to all of you.
Thank Yes. you, ma'am. Okay, bye. Thank you. ma'am. Bye.